Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 61 for that topic haloalkanes and haloarenes. Now we have started learning haloarenes and just the reactions of the haloarenes we have to learn. We have seen that haloarenes are less reactive for nucleophilic substitution reaction. The reason also we have seen in the last lecture. Now in this particular lecture we are going to learn regarding the electrophilic substitution reactions, they are called SE reactions of haloarenes. haloarenes की electrophilic substitution reaction यानी SE reaction जिसको कहते हैं, that we have to learn. Okay, they are just add like benzene. अभी haloarene जो है, that particularly suppose we take chlorobenzene or any. Instead of writing 3 double bond, I will write this. Okay, this is X. And then suppose it undergoes halogenation or it undergoes nitration or anything. Then that NO2 plus group will get attached to the ortho carbon atom or para carbon atom, and you will get this product without disturbing the X. Okay, or you may get, if it comes at para position, you may get this, that is X here, no doubt, as it is, and here is NO2. So this is called as SE reaction because in this reaction what is happening there? H plus of benzene ring is replaced by NO2 plus. Is replaced by NO2 plus, that is, what do you say that? Electrophile. Therefore, it is called SE. Electrophile, you know what is electrophile? An atom or group having positive charge or electron deficient nature is called as electrophile. तो ये बेंजीन में हमने लर्न किया था, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फ्राइडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, याद आता होगा आपको. ओके, सो ऑल दैट रिएक्शंस आर पॉसिबल हियर आल्सो विथ हेलोअरीन. हेलोजन का पोजीशन तो वही रहने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू दैट nature of that halogen, the incoming electrophile will be coming either at ortho position to give ortho nitro product here, और at para position. इसके अनुसार ये ortho position है, इसके अनुसार ये para position है, and this is ortho and para directing. Okay, तो ये कैसा होता है? So why halogen? This is called as SE reaction of haloarene. Now remember, particularly halogen atom is ortho and para directing. It is ortho and para directing group. So why it is ortho and para directing group? That means, what do you mean by ortho and para directing group? यानी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आने वाला है? बेंजीन में. H प्लस बेंजीन का निकल जाएगा और उसकी जगह कौन लेगा? दैट इलेक्ट्रोफाइल. दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. और हेलोजन तो वैसे, लेकिन हेलोजन बताने वाला है कहां पे आना है आपको. दैट इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. वो बताने वाला है इलेक्ट्रोफाइल को, आओ बेंजीन रिंग में, नो डाउट, बट जहां पे मैं कहूंगा वहां पे आना पड़ेगा, यहां पे बैठो. ओके, यानी इट विल आस्क दैट NO2 प्लस टू कम एट ऑर्थो पोजिशन और टू कम एट पैरा पोजिशन. तो उसे कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. तो ये क्यों है? तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से है. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैं बताने जाऊंगा आपको, बहुत ही सिंपल होते हैं लिखने के लिए, और ये इसकी प्रैक्टिस भी हमें होना चाहिए. सपोज दैट दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, this is double bond, alternate double bond, single bond, and this is X. It may be chlorine, you can take chlorine also, okay, or that bromine or iodine. Okay, now halogen has got octet of electron
every carbon is also having octet of electron here. तो ये जो है ये उसके 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो मैंने दिखा है 1 2 3. ओके एंड दैट्स व्हाई एंड फोर्थ इज हियर. तो ये ऑक्टेट है उसका. इट हैज गॉट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वी नो बार बार हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है पर यहाँ पे दिखा सकते हैं क्योंकि उसका रोल है. नाउ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल व्हाट हैपेंस देयर. ये इलेक्ट्रोफाइल चेतावनी देता है बेंजीन को, अरे मुझे ले लो अंदर. तो ये जो डबल बॉन्ड का रिंग है, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट विल बी शिफ्टेड टू दिस ऑर्थो कार्बन. ओके, फिर ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन का स्टेबलाइज करने के लिए वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी केप्ट हियर बाय क्लोरीन फॉर टाइमिंग. ले लो भाई, डोंट क्राई. पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया वो, लाइक ऐसा मत करो, मैं देता हूं चलो. एंड देन दिस इज दैट डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन क्लोरीन, ओके, एंड बेंजीन. This is plus. Because electron pair is kept there, it has got plus charge. Okay, और यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज. That is called electron density. Okay, so suppose that this is structure number 1, then this will be the structure number 2. अब क्या हो जाएगा, now this electron pair will get shifted from that pi bond to this carbon, which is a para carbon. तो क्या हो जाएगा बताओ, what will happen now? Now in this case the electron density will be there going at the para position. और ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रखी जाएगी and then they will form a double bond. Here is the double bond, here is the double bond. यानी एक आप देख लो 3 डबल बॉन्ड तो बिल्कुल आने ही वाले हैं. ओके, एक बाहर है बेंजीन के और 2 अंदर है. यहां पे तीनों भी अंदर ही थे. नाउ व्हाट हैपेंस देयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू दिस एंड दिस विल बी शिफ्टेड टू दिस. ओके, तो अब क्या हो जाएगा देखो. अब इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा नीचे लिखता हूं, ये नंबर 3 है स्ट्रक्चर. ये इसको एरो करके ऐसा लिखता हूं क्यों, यहां जगह नहीं है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, नाउ यू विल फाइंड दैट ए डबल बॉन्ड विल बी क्रिएटेड हियर. हियर इज द डबल बॉन्ड एंड हियर इज द माइनस चार्ज एंड हियर इज द डबल बॉन्ड Cl, then plus, and then this is electron pair, this is electron pair. Okay, this is number 4. So now can you imagine what is happening here? They are all resonance structures. So they are all resonance structures and they are stabilizing that benzene ring. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को स्टेबलाइज कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड नेगेटिव चार्ज इज कमिंग वेयर एट ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन. देखो आप, ये जो पोजिशन रहती है हमें मालूम है बेंजीन में ये जो पोजिशन है ये कौन सी है, ऑर्थो. ये कौन सी है, ऑर्थो, इमीडिएट नेबरिंग. ये कौन सी पोजिशन है, मेटा. दिस इज मेटा and this is para. Okay, position number 2 and 6 या 1 2 1 2 that will be ortho. 1 3 1 3 that will be meta and 1 4 will be para. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है that is increasing at ortho position, para position, ortho position, but never at meta position. ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीजेस ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, बट नॉट
at meta position, not at meta position, and hence that is ortho and para directing group. ये हेलोजन जो है वो कौन सा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी आने वाले ग्रुप को, इलेक्ट्रोफाइल को क्या डायरेक्ट करेगा? गो एट ऑर्थो पोजीशन और गो एट पैरा पोजीशन. चुपचाप जाके बैठो आप. कोई बोलेगा मैं मेटा में जाता हूं, नहीं मेटा में नहीं जाना है. गो एट ऑर्थो, गो एट पैरा. दैट इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा एंड बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल लव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and electron density is not at all there at meta position. देखो ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कहीं दिख रही है कि आपको? नो, नॉट इन ए सिंगल स्ट्रक्चर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग, इट इज ओनली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग. समझ में आया होगा? बहुत ही सिंपल है. अब इसको हेलोजन को डीएक्टिवेटिंग कहते हैं. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हेलोजनीज. क्यों डीएक्टिवेटिंग कहते हैं? यानी ये पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहां पे आपको अगर देखते हैं तो ध्यान में आया होगा, एक्चुअली हेलोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचता है अपने पास. यहां पे हम उल्टा दिखा रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड, ऐसा दिखा रहे हैं. ये तो उल्टा हो गया. Isn't it? Actually the person who is just greedy to take the electron, उससे हम चंदा लेके आए हैं. कितनी विक्ट्री है देखो. Isn't it? जब डोनेशन लेके आते हैं तो ये बात ध्यान में रखो. तो ये क्लोरीन क्यों देता है? यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा है. अगर उसका नाम होने वाला है उस पर्सन का, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, तो उसको हम कन्विंस कर सकते हैं कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, दे दो डोनेशन. दे देता है. तो ऐसा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और वैसा नुकसान नहीं, उसका डबल बॉन्ड तो हो रहा है, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी. सो ये ध्यान में रखो. एंड दैट्स व्हाई हियर रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग देयर. ओके. सेकंड थिंग, डीएक्टिवेटिंग का मतलब बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट वो बेंजीन रिंग को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देता है. ऐसे लोगों के पास हम चंदा मांगने को गए तो पहले हम थोड़े फ्रस्ट्रेट रहे थे, नहीं यार ये क्या देने वाला है, क्योंकि शुरुआती वैसा करता है वो आदमी, मैं नहीं देने वाला. वैसे यहाँ पे क्लोरीन भी वैसे ही कर सकता है, मैं नहीं देने वाला इलेक्ट्रॉन. सो इट डीएक्टिवेट्स दैट बेंजीन रिंग, एंड दैट्स व्हाई अगर कंपेयर करेंगे आप, सो हेलो बेंजीन will be lesser reactive than that benzene for what? SE reaction, which is correct. अगर ऐसा पूछा तो SE reaction बेंजीन की ज्यादा फास्ट होने वाली है, और हेलो बेंजीन की जो है वो उसे ड्रास्टिक कंडीशंस लगेगी. So I am confident that you must have understood this theoretical part, which is very important. Make a practice of sketching these resonance structures. We shall start learning now SE reaction from next video. Thanks a lot for watching this.